Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have with me Dr. Shivam, who is a DM cardiology resident, and today we will be discussing sare pros and cons of why he chose medicine, why I chose derma, and how you can make that decision for yourself. So we are going to discuss that in detail. So sir, can we start with your introduction first? Hello everyone, I am Dr. Shivam Arora and I am currently doing my DM cardiology from AIIMS New Delhi. I did my MBBS from King George's Medical University and then I did my MD medicine from Maulana Azad Medical College and currently I am doing my DM cardiology from AIIMS New Delhi and I am a first year resident here. तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की मेडिसिन के लिए भी और फिर डीएम के लिए भी और आपने कार्डियोलॉजी क्यों चूज की? First of all, I will tell you about the preparation. So, from second year, third year MBBS, I joined coaching and I was preparing for this NEET PG. And also, the exam that we had in our college was MCQ based. So, it helped me a lot in the preparation part. For DM, I used to prepare in the ward itself first of all. So I used to see a lot of cardio patients there. We had echo machines, so I used to do that. I used to see a lot of ECG, and then again I joined the coaching in last 6 months, online coaching, and I prepared for that. And for cardiology purpose, so I had a lot of interest in mathematics at that time in my 11th also. And during my second or third year MBBS, I find cardiology as a very logical branch. Like I can tell why this murmur is there in a particular disease. I can draw a cardiac cycle on a paper. I can relate the ECGs with vectors and all. So that was one of the reasons. And from that time only, I had a lot of interest in ECGs and echo as well. Okay. सर तो आपको अगर मौलाना आजाद से मेडिसिन मिल रही थी तो ऑब्वियसली आपको डर्मा मिल ही रही थी. तो वन ऑफ द मेजर रीजंस क्या था जो आपने डर्मा को रूल आउट किया जिससे? One major reason was कि since I am a first generation doctor in my family, so I decided to take medicine because medicine is something जिसमें आपको हर सिस्टम की नॉलेज हो जाती है. And when your relatives call and ask you about the problems they are having, so you can easily solve them. One reason was this. Another reason was कि I can connect more to it because since my second year MBBS we were studying medicine only, so I was more able to connect with it, and I find it more logical in respect to other specialties. हाँ ऐसा मेरे पापा भी बोलते हैं जब मैं भी व्हेन आई वाज आल्सो फीलिंग माय चॉइसेस तो माय फादर वाज आल्सो लाइक ही सेइंग मेडिसिन इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस यू डोंट रियली नीड अ लॉट ऑफ तामझाम सेटअप कुछ नहीं चाहिए एक स्टेप्स लिया एक टेबल ली एक चेयर लिया बैठ गए बात करने के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो इससे आसान जिंदगी नहीं हो सकती ही लिटरली सेड कि मैं ओटी में एक एक दो दो घंटे खड़ा होऊंगा एक सर्जरी करूंगा उसके बाद वो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इतना कुछ करना पड़ेगा एंड मेडिसिन में यू जस्ट नीड अ चेयर टेबल तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो और उतने में ही तुम्हारा काम हो जाता है तो एक कन्वीनियंस है मेडिसिन में आई थिंक बाद में सेटल होना या फिर काम वाम स्टार्ट करना बहुत आसान है बट आई थिंक एक ड्रॉबैक जो मुझे बहुत बड़ा लगता है मेडिसिन का वो ये कि आजकल डीएम बहुत कंपलसरी टाइप हो गया है या फिर कोई लाइफस्टाइल एडवाइस जो आप इन जनरल लोगों को देना चाहोगे There is always a reason. मतलब मैंने जितने यंग एमआईज देखे हैं एटलीस्ट 80 to 90% में कोई ना कोई रीजन होता है. मोस्ट कॉमन रीजन जो मुझे दिखता है दैट इज स्मोकिंग. सो अभी 25 ईयर मेल आया था लास्ट वीक इन इमरजेंसी विद स्टेमी एंड ही वाज अ क्रॉनिक स्मोकर एंड अभी द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग या प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली. वी फाइंड इट वेरी कूल टू स्मोक एंड वी जनरली से कि एक सिगरेट से क्या होता है बट इट्स written that even a single cigarette can cause MI. One thing is that, another thing is our lifestyle definitely. We eat a lot of fast food, the lipid profile of most of the patients are deranged. That is one of the major causes. So these two causes that I usually see in the patients with young MI. ओके सर कोई कॉमन एक लाइफस्टाइल एडवाइस हार्ट को फिट रखने के लिए फ्रॉम यंग एज दैट वी कैन डू अदर देन नॉट स्मोकिंग ऑब्वियसली Exercise, like normally it is said that 200 minutes of moderate exercise has to be done daily. That is one thing, and you have to incorporate fruits and fresh vegetables in your diet. Tell us about the pros and cons of dermatology. द थिंग इज मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ डर्मेटोलॉजी तो मुझे सबसे अच्छा प्रो यही लगता है कि आई वांटेड समथिंग दैट वाज आई वांटेड अ वेरी नीट ब्रांच इन द सेंस कि डॉक्टर्स वर्क सो हार्ड दे अर्न अ लॉट आल्सो बट दे आर ऑलवेज लाइक स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड तो आई वांटेड अ ब्रांच जिसमें अच्छा दिखना ठीक से रहना अपना सेल्फ केयर करना वाज पार्ट ऑफ माय जॉब इटसेल्फ
तो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट स्किन केयर करना, अपने बालों का ध्यान रखना, अच्छे से ड्रेसअप होना इज काइंड ऑफ माई जॉब ओनली. So that is one thing which I really like about dermatology, and that I think is also because I get a lot of time for myself. तो work life balance भी बहुत अच्छा है. Most of our procedures are elective. हमारी कुछ emergencies खास होती नहीं, तो हमारी OT elective है. हमारी OPDs में भी severity of sickness कम है patients की, तो we can plan things according to us. तो मतलब हमारी ओपीडी और हमारी ओटी दोनों ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमें रात को 2 बजे जागना पड़ रहा है, 3 बजे जागना पड़ रहा है, या फिर हर बर्थडे पार्टी, हर शादी, जो मतलब एज एन हर फंक्शन मिस करना पड़ रहा है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजी में भी करना ही पड़ता था, क्योंकि एग्जाम्स आप नहीं डिसाइड कर सकते कब होंगे कब नहीं. तो वो एक चीज मैं नहीं चाहती थी कि मुझे पूरी लाइफ फॉलो करनी पड़े कि कोई सिक पेशेंट आ गई बहुत ज्यादा, या कोई बहुत बीमार बंदा आ गया, एंड या फिर तुम्हारा कोई ऑपरेटेड पेशेंट सिक हो गया एंड देन यू हैव टू स्टे बैक एंड सी दैट पेशेंट. आई वांटेड टू हैव सम होल्ड ऑफ माय लाइफ, तो इसलिए भी मुझे डर्मा करना था. प्लस मतलब ऐसे एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, सुंदर दिखना ऑब्वियसली लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है. और पढ़ने में भी मतलब एज एन इफ यू रीड क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी तो आपको हर तरीके का एक्सपोजर मिलता ही है. हमारे पास भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हम डायग्नोस कर सकते हैं, इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, सब टाइप की वेराइटी है. तो अगर क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी भी बहुत फुलफिलिंग है. मतलब कुछ लोगों को लगता है कि डर्मा बहुत सुपरफिशियल ब्रांच है, बट अगर आप अच्छे से क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी करोगे, अच्छे से डायग्नोसिस बनाओगे, तो इट्स वेरी फुलफिलिंग. मतलब एज इन की सिंपल से जैसे नेल की डिस्कलरेशन की 4 चीजें हो सकती है और उनकी 4 अलग मैनेजमेंट हो सकती है. तो वो आप जब ब्रांच करते हो तो पता चलता है कि इतनी भी सुपरफिशियल नहीं है जितनी की लगता है लोगों को. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग मेडिसिन इसलिए भी लेते हैं कि उन्हें लगता है एक डर्मा में तो है ही क्या, 2-4 डिजीज है, उन्हीं को बार बार हर किसी को स्टेरॉइड दे रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. मतलब अगर आप अच्छे से करोगे क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ हम स्टेरॉइड्स नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन या टीनिया, स्केबीज या फिर आई मीन ऑटोइम्यून डिजीजेस ही नहीं है. डर्मा में बहुत कुछ आता है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में. बाकी एक चीज और जो मुझे लगती है कौन है, वो ये कि जिन्हें थोड़ा बहुत सर्जिकल स्किल पसंद हो. मतलब मुझे बहुत हाई फाई ओटी पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे पोस्ट ऑप प्री ऑप कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए ज्यादा. पर मुझे छोटा छोटा सर्जिकल हैंड अच्छा लगता है, एक आध सिस्ट निकाल के मुझे अच्छा लगता है. तो अगर तुम्हें थोड़ा सर्जिकल टच चाहिए, तो कुछ लोग ज्यादा हाई फाई सर्जरीज भी कर सकते हैं. जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो फ्लैप्स वगैरह, क्यूटेनियस मैलिग्नेंसीज का रिसेक्शन, ये सब डर्मा की डोमेन में ही आता है. फॉरेन कंट्रीज में लोग करते भी है, आई थिंक एम्स में भी करते हैं. बट ऐसा है कि आपके पास ऑप्शंस है. अगर आपको सर्जिकल हैंड चाहिए तो आगे सर्जिकल स्किल्स के लिए भी काफी ऑप्शंस आपके पास होते हैं. बाकी अगर डर्मा के कॉन्स की बात करें तो एक तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ये भी रहता है कि आपको बहुत बाद में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी. इन केस मतलब आप बहुत हाई फाई सेंटर बनाना चाहते हो तो यू माइट नीड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. तो फॉर सम पीपल दैट इज अ बिग ड्रॉबैक, बट दैट ऑल्सो मतलब आई हैड डिस्कस विद अ फ्रेंड ऑफ माइन कि इफ यू स्टार्ट विद बेसिक प्रोसीजर्स तो वो भी बहुत कुछ नहीं है. दूसरा, कुछ लोगों को मतलब एड्रेनलिन रश पसंद होता है, तो वो वाली चीज अगर आपके लिए है, मतलब जैसे जो लोग हार्डकोर सर्जन होते हैं जिन्हें जैसे ऑर्थो सर्जरी, गायनी जैसी ब्रांचेस पसंद होती है, तो वो लोगों को डर्मा थोड़ी सुपरफिशियल और नॉट दैट ग्रेटिफाइंग लग सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कुछ मतलब कुछ एड्रेनलिन रश टाइप आपको नहीं मिलेगा. दूसरा, एज इन बहुत सिक पेशेंट नहीं आ रहे तो आपको ये सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी कि आपने बहुत सारी लाइफ सेव की है, ऐसा कुछ किया. तीसरा जो मुझे लगता है कि डिजीजेस जो है उनको कम्प्लीटली आप क्योर मतलब कर सकते हो अगर इन्फेक्शन है, बट उसके अलावा मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर सच दैट दे विल रिकर. तो ना वो एक पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और आपको भी थोड़ा थोड़ा मतलब लगेगा कि यार हाँ मतलब मैं इतना इसको टाइम इस पेशेंट का ले रही हूँ, इतना इसके पैसे लग रहे हैं, बट ये बंदा ठीक नहीं हो रहा. तो वो चीज आपको थोड़ी एक लग सकती है इन केस मतलब आपको बहुत ज्यादा ऐसा at the end of the day you have to sleep with a lot of gratification कि आज मैंने 100 लोगों की जिंदगी चेंज कर दी. तो वो हो सकता है आपको नहीं मिले because you know कि 1 साल बाद दोबारा रिलैप्स हो जाएगा. तो those I think are the cons. Thank you very much, Dr. Arushi, and it was very nice having this conversation with you. Thank you, sir.